Hi people, I hope you all are well and good. Let us study about the committees of the House. This is the series of Constitution of Japan. There are 4 types of committees in Japan: standing, special, joint, conference, and joint legislative. The standing committees, these are the most important committees, okay? These committees, they play a very important role in lawmaking procedure. Originally, there were 22 committees. In 1955, the number was reduced to 16 committees, and presently there are 20 standing committees for HOR and 17 for HOC. For the ones who do not know what this HOR and HOC is, this is the House of Representatives and the House of Councillors. These are the 2 chambers of Diet, the Parliament of Japan. Every standing committee has around 20 to 50 members. It may differ from committee to committee. A member may serve for at least 1 committee, but not more than 3 committees. The members of the committee, they elect their own chairman, and the chairman, he exercises a casting vote. Special committees, these are set up for some particular problems or for some particular discussion. As soon as the discussion is solved, the problem is solved, these committees are also dissolved. These committees are appointed by the chairman of the house concerned. If HOR wants to organize or appoint a special committee, then the chairman, the speaker of HOR will do the same. And if HOC wants, then the president of HOC will appoint a special committee. Joint conference committee, it is formed when there is a deadlock between the houses. HOR कुछ और बोल रहा है, HOC कुछ और बोल रहा है, दोनों में deadlock हो गया है, differences है, तो a joint conference committee will be formed by both the houses. It will select its own chairman. There will be 20 members from both the houses. It can also be formed to discuss about budget, treaties, or the designation of prime minister. Voting procedure से चलता है ये पूरा committee. Majority votes will be of 2/3. Joint legislative committee, इसके अंदर there are 10 committees in HOR and 8 in HOC. तो दोनों के 2 चेयरमैन होंगे, HOR की कमिटी का अलग और HOC की कमिटी का अलग चेयरमैन. 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए यहाँ पे भी कुछ भी पास करने के लिए. ये कमिटी क्या करती है? It advises both the houses. नेशनल पॉलिसी के ऊपर it can give its advice, या कोई नया legislation बन रहा है या laws को revise करना है, so this committee is asked to advise the house. Very, very important topic, the legislative procedure of the country. कोई भी law किस तरीके से बनेगा जापान में? There are 6 steps of the procedure: preparation of the bill, introduction of the bill, committee stage, consideration by the house, bill in another or the other house, and approval of emperor in the end. Firstly, preparation of the bill. पहले तो ये सोचो कि बिल क्यों प्रिपेयर करेंगे. If there is some necessity, है ना, आज एक डिपार्टमेंट को लगा कि मुझे एक लॉ चाहिए नया अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो वो क्या करेगा? वो बताएगा अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को that yes, we need this particular law. So whenever there is some requirement of a new legislation or amendment in the constitution, policies are formed by the cabinet. पता चला कि ठीक है, we require this, तो कैबिनेट क्या करेगा? वो पॉलिसीज बनाएगा. फिर ये एक कोई भी जिस भी डिपार्टमेंट की पॉलिसी है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उस पॉलिसी को बिल में कन्वर्ट कर देगा. बिकॉज हाउस के अंदर तो बिल जाएगा ना, पॉलिसी थोड़ी ना चली जाएगी. अगर कोई डिपार्टमेंट चाहे तो वो खुद से भी इनिशिएट कर सकता है और एक बिल ड्राफ्ट कर सकता है. अदरवाइज द कैबिनेट विल डू इट. The drafting committee, it will prepare the bill. फिर ये जाएगा डॉक्यूमेंट सेक्शन के पास में, फिर मिनिस्टर के पास में. जब मिनिस्टर ने एग्जामिन कर लिया, अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, फिर वो बिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास. प्राइम मिनिस्टर से फिर बिल जाता है ब्यूरो ऑफ लेजिस्लेशन के पास में. वो बिल को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं दैट यस ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट एट आवर स्टेज. फिर वो बिल को डाइट में भेज देंगे. अब
एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट होगा। डाइट के अंदर बिल का इंट्रोडक्शन होगा इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। रिमेंबर दिस, इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है ना अभी। तो प्राइम मिनिस्टर के नाम में हम बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। 5 दिन के अंदर अंदर उसी सेम बिल की कॉपी दूसरे हाउस के पास भी चली जाएगी। अगर HOR में इंट्रोड्यूस किया है बिल तो कॉपी HOC के पास चली जाएगी। इफ दे हैव इंट्रोड्यूस द बिल इन HOC तो 5 days में वो कॉपी HOR के पास चली जाएगी। अब स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर और द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ही विल सर्कुलेट इट अमंग द मेंबर्स। मेंबर्स ने एक बार देख लिया, फिर हम देंगे इसे अप्रोप्रिएट कमिटी को, जिस भी कमिटी का वो बिल बनता है। और ये कौन सा जस्ट करेगा? कमिटी ऑफ ऑन वेज एंड मीन्स। वो बताएगी कि इस कमिटी को दे दो, ये इस कमिटी के परव्यू का है। अगर कोई बहुत अर्जेंट बिल होता है ना तो वो कमिटी को नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली फिर आगे दूसरे हाउस में भेज देते हैं। दिस कमिटी रेफरेंस इज ओमिटेड इन केस ऑफ अर्जेंट बिल्स। यहाँ तक समझ में आया? वेरी सिंपल। बिल प्रिपेयर किया, पॉलिसी प्रिपेयर की, फिर कैबिनेट ने क्या उस पॉलिसी को एक बिल के अंदर बनाया गया। बिल जब बन गया, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया, फिर वो हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, PM के नाम के अंदर हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया। स्पीकर ने सभी मेंबर्स को दे दिया, दूसरे हाउस को भी दे दिया 5 दिनों में। फिर अप्रोप्रिएट कमिटी को देंगे। अब कमिटी क्या करेगी? कमिटी उस बिल की बाल की खाल निकालेगी, मतलब पूरे तरीके से एग्जामिन करेगी एक एक सिंगल पॉइंट उस बिल का, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीज पास कर रहे हो कंट्री में वो बिल्कुल सही जाए। कोई डेटा इसको चाहिए वो गवर्नमेंट से ले सकती है, प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकती है, मिनिस्टर्स को क्वेश्चन कर सकती है, पब्लिक मीटिंग्स लगानी है, पब्लिक का ओपिनियन चाहिए वो उससे पब्लिक को बुला सकती है। पूरे डाइट के लाइब्रेरी जो होती है उसका भी यूज कर सकती हैं ये कमिटीज। ये चेक करती हैं कि फ्रेजोलॉजी तो सही है, मतलब जिस तरीके से आपने उसको फ्रेम किया है, फ्रेम करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड्स का यूजेज सही है, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके साथ तो कंफर्मिटी में है सब कुछ। तो कमिटी क्या करेगी? पूरे अच्छे तरीके से बिल को चेक करेगी। अगर कमिटी को लगता है कि दिस बिल इज नॉट वर्थ टू बी promoted to the next stage, तो वो कमिटी उस बिल को वहीं खत्म कर देगी। That means it can pigeonhole any bill. अगर एक बार कमिटी स्टेज से बिल पास हो गया, उसके बाद में वो जाता है वापस से हाउस के पास, कंसिडरेशन बाय द हाउस। फिर अब मेंबर्स क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट्स चलाएंगे। 20 मेंबर्स HOR में सपोर्ट के लिए चाहिए और 10 HOC में। अगर मनी बिल है तो HOR के 50 और HOC के 20 मेंबर्स। स्पीकर फिक्स करेगा डिस्कशन का टाइम। ये हमने पढ़ा था स्पीकर वाले लेसन में, लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पीकर क्यों फिक्स करता है डिस्कशन का टाइम, बिकॉज देयर आर हीटेड डिस्कशंस। वोटिंग ओपन बैलेट से होती है, सीक्रेट से भी हो सकती है, डिपेंड्स, जो स्पीकर चाहे वो होगा, और स्पीकर के पास में कास्टिंग वोट होता है। वन थिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट, पहले कमिटी को क्यों दिया? हमने हाउस में जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो मेंबर्स तभी डिस्कस कर लेते, तब क्यों नहीं उन्होंने डिस्कस किया? व्हाई डिड दे गिव इट टू द कमिटी एट फर्स्ट? बिकॉज अगर कमिटी ने उस बिल को पास ही नहीं किया, सो दैट मीन्स उस बिल में कुछ प्रॉब्लम है, और इट इज नॉट वेरी रिक्वायर्ड, या वो किसी लॉ के साथ में कंफर्मिटी में नहीं है ना, या उसकी कोई फ्रेजोलॉजी में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पहले एक प्रॉपर बिल बनेगा बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च, फिर मेंबर्स उसे पास करेंगे। बिकॉज दिस passing of the bill, these discussions, they take a lot of time. इसीलिए हमने पहले कमिटी को दिया, डायरेक्टली मेंबर्स ने उसको डिस्कस और अमेंडमेंट्स नहीं किए उसमें। देन द बिल विल गो टू द अदर हाउस, दूसरे हाउस में जाएगा, यही सेम स्टेजेस वहां भी होंगे, इंट्रोड्यूस होगा, कमिटी के पास जाएगा। वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट कमिटीज फॉर बोथ द हाउसेस, तो उसकी कमिटी के पास में जाएगा, वापस आएगा, फिर वो पूरा डिस्कस करेंगे उस बिल को। अगर बिल को उन्होंने अप्रूव कर दिया सेकंड चेंबर ने तो इनैक्टमेंट बन जाएगा डाइट का, अगर रिजेक्ट कर दिया तो वापस से वो पहले वाले हाउस के पास भेजेंगे।
फिर वो हाउस देखेगा अच्छा इन्होंने ये अमेंडमेंट सजेस्ट किया है, ठीक है कर लेते हैं। अगर बोला कि नहीं करेंगे हम अमेंडमेंट, फिर वो जॉइंट कमिटी फॉर्म करेंगे, वहां पे वो डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करेंगे। जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया, फिर वो जाएगा एम्परर के पास। हमारे यहाँ किसके पास जाता है इन इंडिया? प्रेसिडेंट। वो वहां पर वो एम्परर को देते हैं। जब अप्रूव हो गया दोनों हाउसेस से, एम्परर के पास जाएगा, स्पीकर देगा एम्परर को, एंड when the emperor will sign on the bill will be published in the official gazette of the country. The emperor does not have any kind of veto power. हमने देखा था emperor is only a ceremonial head, तो वो सिर्फ signatures ही करता है। बजट किस तरीके से फॉर्मुलेट होगा? फाइनेंस कमिटी फॉर्मुलेट करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करेगी। कैबिनेट बजट को 2 बार देखता है, पहले तो जनवरी के अंदर, और दूसरी चीज जब फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरा प्रिपेयर कर देती है, फिर वो बजट को देखता है। सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होता है बजट? HOR के अंदर। ओनली HOR हैज द पावर जिसके अंदर हम बिल को इंट्रोड्यूस, बजट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। HOR में जाने से पहले बजट बिल कमिटी में जाता है, which is very important stage. It has a total of 51 members. In case of a deadlock, a joint session will be created of both the houses, HOR and HOC. This was about the legislative procedure of the house of the country Japan. If you want to attempt some quizzes, you can follow me on my social media accounts, Instagram, Telegram, Facebook. If you have not subscribed to my YouTube channel yet, please subscribe it. The links for my social media are below in the description box. Stay tuned. Bye.